یہ آپ جو ججز نے حق میں چیزیں مینشن کی ہیں وہی چیزیں مینشن کی ہیں جو کبھی آپ بولتے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ بچے ہم تو 2 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے عورتوں پہ دھاوے، غیر سیاسی خواتین، ہمارے بچوں پہ، بیبی امار کو مار دیا، 5 سال کا بچہ تھا، نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں بٹا گرام جیل میں، مالا کنڈ میں، خان صاحب کو اس طریقے سے ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے کے گئے تھے، ہمارے گھر پہ دھاوے بولے گئے، مطلب ہمیں اپنا گناہ کوئی سمجھا دے، ہم نے قتل کیا، ہم نے چوری کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم صرف یہ گناہ گار ہیں کہ ہم نے ووٹ خان کو دیا اور وہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، ہمارے مطلب کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ نہیں دے سکتے؟ جو باتیں ہم نے کی ایگزیکٹلی وہی ہائی کورٹ نے، اور یہ خطرناک موڑ اس لیے ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز نے قرآن پہ اور آئین پہ حلف کیا ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں گے، تو جب وہ اپنے آپ کے لیے انصاف نہیں ڈھونڈ سکتے تو وہ عدالت میں کیا انصاف دیں گے؟ مطلب بچے تو پاکستان کی، میں نے اس دن ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑیں کیوں ہلا رہا ہے، یہ کون ہلا رہا ہے؟ پاکستان کو نقصان دینے سے پاکستانیوں کو تو فائدہ نہیں ہے نا، کس کو فائدہ ہے؟ میڈم 6 ججز بول پر ہیں، صرف انصاف مانگ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی یا تحریک انصاف ججز کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا نہیں، الحمدللہ یہ ایک اچھا پہلو بھی ہے عام پاکستانی کے لیے کہ اگر ایک جج کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، مجھے پروٹیکشن نہیں مل رہی، میرے خاندان کو کوئی نہیں بچا پا رہا، ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگ رہے ہیں، مطلب آپ سوچیں کیسی سوسائٹی، تو مطلب morality جو انسانیت ہوتی ہے وہ تو دور کی بات ہے، ہم جا کہاں رہیں گے؟ لا قانونیت کہاں جا کے رکے گی؟ ہم کیوں؟ کل بھی خان صاحب سے ملے ڈالے میں میری دوسری ملاقات ہوئی ہے، دونوں دفعہ انہوں نے ہمیں دوبارہ لیکچر دیا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان، کہ پھر پاکستان کو کوئی تکلیف نہ دے سکے، 1 انچ زمین کا ہم نہ کھوئیں، ہمارا ملک نہ بکھرے، تو ان میں سوچنے والوں کے لیے علامات ہیں نا کہ یہ گیم کس طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی، کمشنر راولپنڈی جو آڑوز کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ 70 ہزار سے جیت رہے تھے، ہرا دیا گیا، اس کے بعد ججز کا ہاتھ آ جاتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے ججز نے جوڈیشل کونسل کو کہا ہے، اور آج تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کہا ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اور اس لیٹر میں یہی ساتھ میں مینشن ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے، جس میں ٹریان کا ایک کیس مینشن ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے کس کے سیاسی کیسز پہ یہ اثر انداز ہوا؟ اچھا دیکھیں، اس وقت یہ پورے پاکستان کے سیاسی کیسز پہ اثر کرے گا، اب جب آپ عمران خان جیسا آدمی جو ایک فارمر وزیر اعظم رہ چکا ہے، اگر وہ پاکستان میں اس کے لیے انصاف نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ بے اثر نہیں ہے، اس کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے، سب نے اس کو ووٹ دیا ہے، اگر اس کے لیے ساری عدالتوں کو استعمال کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، تو کل کو جو عام آدمی جو دہاڑی دار ہوتا ہے، جو 25,000 کماتا ہے، میری طرح کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بینک میں کرتا ہے، کوئی اسکول میں استاذ ہے، کوئی آپ کی طرح جرنلسٹ ہے، آپ کی پھر کیا پروٹیکشن رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حفاظت رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اگر پاکستان میں ان لوگوں نے سچ بولنے والوں کا، جس طرح مریم اورنگزیب نے بولا کہ سر قلم کر دو، تو پھر یہاں کون بچے گا؟ صرف اشرافیہ بچے گا، یہ 5% لوگ، تو یہ پاکستان اشرافیہ کے لیے تو نہیں بنا تھا، یہ پاکستان تو ہم سب کے لیے بنا تھا، اس لیے ہم ججز کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آگے بھی رہیں گے۔ اس جوڈیشری نے ہمارے خلاف کتنے فیصلے دیے پچھلے 2 سال میں، ہم کبھی جوڈیشری کے خلاف بولے، ان کے خلاف نکلے، کبھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے کوئی دھاوا بولا نہیں، کیونکہ عدالت ہے، مجھے اس کا فیصلہ نہ بھی پسند ہو تو، لیکن اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ غلط طریقوں سے ان پہ تشدد کر کے، ان پہ تکلیف کر کے، ان کو بچوں کو اٹھوا کے، ان کی بہنوں کو اٹھوا کے ان کو الیکٹریکیوٹ کر رہے ہو آپ، مطلب یہ اس سے زیادہ پاکستان میں پستی اخلاقی اور قانونی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی، اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو یہاں روکیں، اس ملک کو اکٹھا کریں، ان صوبوں کو اکٹھا کریں، پٹھان پنجابی سندھی فضول باتیں نہ کریں، قوم کو ایک بنائیں۔ میڈم چیف جسٹس عامر فاروق کو اس حق کے بارے میں پتہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا آگاہ کیا تھا تحفظات سے، تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اتنی دیر بعد 2023 2024 2023 سے یہ حد سٹارٹ ہوئے تھے، اور آج یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟
اس में तो बच्चे मुश्किल है कुछ कहना कि कल ही खत आया है और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि क्या सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था छीन लेते हैं, इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया ना इलेक्शन करवाया और उनको आपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया, तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में और ये जो पीडीएम वाले हैं, इनमें फ़र्क हमें यही है। पीडीएम में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा हमारे नून लीग थे और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं, बट अगर आप चाहते हैं फिर डब्बे भरवा के असेंबली में बिठा देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह MPs पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया। या आप जो जजेस ने हक में चीज़ें मेंशन की हैं वही चीज़ें मेंशन की हैं जो कभी आप बोलते थे, क्या कहेंगे आप? बच्चे, हम तो 2 साल से यही कह रहे हैं, हमारे औरतों पे धावे गैर सियासी ख़वातीन, हमारे बच्चों पे बेबी अमार को मार दिया, 5 साल का बच्चा था, नौजवानों की टांगें कट दी हैं बटाग्राम जेल में, मालाकंड में। खान साहब को इस तरीके से हाई कोर्ट से उठा के लेके गए थे, हमारे घर पे धावे बोले गए। मतलब हमें अपना गुनाह कोई समझा दे, हमने कत्ल किया, हमने चोरी किया, हमने झूठ बोला, हम सिर्फ ये गुनहगार है कि हमने वोट खान को दिया और वो हमें आईन इजाज़त देता है। हमारे मतलब किस कानून में ये लिखा है कि आप इमरान खान को वोट नहीं दे सकते? जो बातें हमने की एग्जैक्टली वही हाई कोर्ट ने, और ये ख़तरनाक मोड़ इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ने कुरान पे और आईन पे हल्फ किया है कि हम इंसाफ की बात करेंगे। तो जब वो अपने आप के लिए इंसाफ नहीं ढूंढ सकते तो वो अदालत में क्या इंसाफ देंगे? मतलब बच्चे, तो पाकिस्तान की, मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये लोग पाकिस्तान की जड़ें क्यों हिला रहा है, ये कौन हिला रहा है? पाकिस्तान को नुकसान देने से पाकिस्तानियों को तो फ़ायदा नहीं है ना, किसको फ़ायदा है? मैडम 6 जजेस बोल पर हैं, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्या समझते हैं इस पे तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या इन जजेस के साथ खड़ी होगी या तहरीक इंसाफ जजेस के लिए क्या करेगी? देखिए, ये एक पेचीदा मामला है, पाकिस्तान में कभी इस तरह का हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा पहलू भी है आम पाकिस्तानी के लिए कि अगर एक जज कह रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, मेरे ख़ानदान को कोई नहीं बचा पा रहा, हमारे बेडरूमों में कैमरे लग रहे हैं, मतलब आप सोचिए कैसी सोसाइटी, तो मतलब मोरालिटी जो इंसानियत होती है वो तो दूर की बात है। हम जा कहाँ रहेंगे? लाकानूनी कहाँ जाके रुकेगी? हम क्यों? कल भी खान साहब से मिले अडयाला में मेरी दूसरी मुलाकात हुई है, दोनों दफ़ा उन्होंने हमें दोबारा लेक्चर दिया बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान, कि फिर पाकिस्तान को कोई तकलीफ़ ना दे सके, 1 इंच ज़मीन का हम ना खोए, हमारा मुल्क ना बिखरे। तो इनमें सोचने वालों के लिए अलामत है ना कि ये गेम किस तरफ जा रहा है। इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कमिश्नर रावलपिंडी जो आड़ोस के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 70 हज़ार से जीत रहे थे, हरा दिया गया, उसके बाद जजेस का हाथ आ जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जजेस ने जुडिशल कौंसिल को कहा है और आज तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने की कहा है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या और इस लेटर में यही साथ में मेंशन है सियासी केसेस के हवाले से, जिसमें टरयान का एक केस मेंशन है, तो क्या कहना चाहेंगे किसके सियासी केसेस पे ये असर अंदाज हुआ? बच्चे देखिए, इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के सियासी केसेस पे असर करेगा। अब जब आप इमरान खान जैसा आदमी जो एक फॉर्मर वज़ीर आज़म रह चुका है, अगर वो पाकिस्तान में उसके लिए इंसाफ नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो बेअसर नहीं है, उसके साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है, सबने उसको वोट दिया है, अगर उसके लिए सारी अदालतों को इस्तेमाल करके जेल में डाला जा रहा है, तो कल को जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार होता है, जो 25,000 कमाता है, मेरी तरह कोई नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई स्कूल में उस्ताद है, कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट है, आपकी फिर क्या प्रोटेक्शन रह गई है? आपकी क्या हिफाजत रह गई है? आपकी क्या हैसियत रह गई है? अगर पाकिस्तान में इन लोगों ने सच बोलने वालों का, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने बोला कि सर कलम कर दो, तो फिर यहाँ कौन बचेगा? सिर्फ अशराफिया बचेगा, ये 5% लोग।
तो ये पाकिस्तान अशराफिया के लिए तो नहीं बना था, ये पाकिस्तान तो हम सब के लिए बना था। इसलिए हम जजेस के साथ पहले भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे। इस जुडिशरी ने हमारे खिलाफ कितने फैसले दिए पिछले 2 साल में। हम कभी जुडिशरी के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ निकले? कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने कोई धावा बोला? नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीक़ों से उन पर तशद्दुद करके, उन पर तकलीफ़ करके, उनको बच्चों को उठवा के, उनकी बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हम इसको यहाँ रोकें, इस मुल्क को इकट्ठा करें, इन सूबों को इकट्ठा करें, पठान पंजाबी सिंधी फजूल बातें ना करें, कौम को एक बनाएं। मैडम, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस हाथ के बारे में पता था, उन्होंने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का आगाह किया था तहफ़्फ़ुज़ात से, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इतनी देर बाद 2023, 2024, 2023 से ये हाथ स्टार्ट हुए थे और आज ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? इसमें तो बच्चे मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि कल ही खत आया है और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया, जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था छीन लेते हैं, इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया, ना इलेक्शन करवाया और उनका अपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया। तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में और ये जो PDM वाले हैं, इनमें फ़र्क हमें यही है। PDM में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा हमारे नून लीग थे और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं, बट अगर आप चाहते हैं फिर डब्बे भरवा के असेंबली में बिठा देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह MPs पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया हाफिज़ साहब ने कि बोला कि जब मुझे पता है सीट हार गया हूँ, PTI जीती, मैं क्यों लूँगा चोरी की हुई सीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1 महीने में हमने पाकिस्तान में एक किरण देखी है उम्मीद की कि लोग खुद सच बता रहे हैं कि हमें धांधली ज़्यादा मैंडेट दिया जा रहा है और हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रूह अभी जिंदा है ना, हमने इसको बचाना है। ठीक है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।